कोई सवेर मजबूरी मैं एक आखिरी जुमला ਓਏ और इस ਭਰਾਵਾ चैप्टर को ਤੂੰ क्लोज करूंगा। आज़ाद अली, ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਸ ਕਰ ਯਾਰ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇ। ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਰੀ ਆ ਆਖਰੀ ਆ। ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। पॉडकास्ट के अंदर भी एक ही बात थी, दरवाजा बंद करके मियाँ बीवी आपस में मसला हल कर लें, जेड़ा तुसी जिन कटना है काट लाओ। भाई ठीक। मैं एक बात बताता हूँ भाई, चेंज कर लेते हैं ना। आप इस पे ये वाला पैगाम ना दें, मैं आपको एक पैगाम दे देता हूँ। आई एम डन विद दिस मैरिज, सॉरी, आई एम डन विद दिस मैरिज। ठीक है, ਉਹਦੇ इतना ਨਾਲ काफी है। ਖਤਮ। आपको क्या लग रहा है? मुझे ये सुन के खुशी हो रही है। नहीं नहीं, आपको खुशी नहीं कि होगी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। कि हाँ भाई ऑन लैके आओ, ऑन फेम दवांगे। अब ऑन वहां पर कोई धड़े का बंदा होता, ऑन कोई वहां पर नस्ली बंदा होता तो ऑन कहता चल निकल, तू मैंने कहता फेम देवेगा। मेरे अपने घर बथेरा फेम है, मैंने तेरा फेम नहीं चाहिए। तू मेरी माँ भैन के नाल होता कोई एहो जी मेरी वीडियो बनाई ने। ऑन उसकी फर्स्ट कॉल पे 12 दफा उसके पास किया, 12 दफा उसके पास गया, जाएगा था आप मेरे मुर्शिद, मुझे पता आपने कुछ नहीं किया। हाँ वो रजब भाई ने गलत किया। When you have affairs with other girls, Iman does not come to any podcast that you have cheated Iman, because Iman knows the fatherless life. मतलब ये बहुत लंबा कमेंट है। हाँ मैं पढ़ता हूँ सारा। ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਵ ਅਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਚੱਕਰ। 20 से 25 लाख रुपया मुंह दिखाइया दो दफा। जब मैं यूके से आया और जब वो पैदा हुआ, मेरे यारों दोस्तों ने डाली नहीं है। तो वो जो मेरा एक 6 माह का बच्चा है, उसके लिए तो अगले 1 साल की उसकी फीड आ जाएगी। अब आपको पालना तो मेरा इसमें नहीं है ना, फर्ज नहीं है कि ऑन को मैंने पालना है, ऑन की मैंने गाड़ियाँ चेंज करवानी है, नहीं। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਸੋ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮੋਸਟ ਡਿਮਾਂਡਡ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੀ। ਰਜਬ ਬੱਟ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸੀ, ਆਲਮੋਸਟ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਜਬ ਬੱਟ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਸੋ ਆਜੋ ਦੇਖਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਵਾਂ, ਹਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ, ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾर्ट। और आप जो है वो डेली पिक्चर वीडियोस लगा लें। आप अपने बेटे से कितनी बार मिला है? मैं जैसे ਇਹ पाकिस्तान ਤਾਂ में एक ਪਿਛਲੀ बार ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ। सिर्फ एक बार। और वो मुलाकात गालिबन आपके ब्रदर इन लॉ ने मेंशन भी की थी हमारे पॉडकास्ट में कि एक मुलाकात के लिए आप आए थे। क्या लेके गए थे? ये दिस इज वेरी पर्सनल, बताना चाहे तो। अब आपने जहाँ पर पेट ही उठा दिया भाई, और पेट उठ भी गए हैं। जब रोज रात को हमारे ऑन भाई हमारे ऊपर ब्रॉडम खोलेंगे और हमें कहेंगे हमें सिंपतियाँ चाहिए, अब हमारे हाथ की पाली हुई बिल्लियाँ हमें म्याऊं म्याऊं करेंगी, तो फिर हम भी तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ना। आपने अगर बात स्टार्ट कर ही दिया तो मेरे साथ थे, सारा का सारा गैंग था, हैदर, डोगर, शहजी, मूसा, जहांगीर, सब गाड़ी में बैठे हुए थे, अंदर नहीं थे गए। जब आप यूके से वापस आए? जी मैं वेरी नेक्स्ट डे गया था। ਸੋ ਆਪਣੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੈਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੈਂਗ ਆ। था मेरा कज़न अली भट्ट, अली आसिफ और चौधरी सकीर साहब, हम तीनों अंदर गए थे। और मैं आधा पौना घंटा अपने बच्चे के साथ खेला था। चाहता हुआ मैं केक शेक उसका लेके गया था, जो यूके से उसकी चीज़ें वगैरह आई थी, तो मैंने पहले भिजवा दी थी, कपड़े शपड़े आए थे उसके लिए। परसों ना ऑन ने एक बात की, परसों चौथ, मैंने कोई जवाब नहीं उसको दिया। वो मैं कुछ नहीं बोलता, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ इसकी सुनता हूँ। इसने कहा जी
पहले ईमान ने कहा कि जी नाम नहीं लेना उसका व्लॉग में, ठीक है। ऑन ने परसों व्लॉग में अपने अपने बैठ के लाइव में कह दिया कि बाप की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। ये मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक लगा हुआ है, जाके इसको सब्सक्राइब कर लो। अब जो करना है मैंने ही करना है, हमारा तो शहजादा है ना फिर, ठीक है। मतलब तुम मेरे बेटे को बेचो, उसके नाम की सिंपैथी लो कि ये सब्सक्राइब करो, यहाँ से अर्निंग आएगी, तो इससे मैंने किवान सुल्तान पालना है। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम अपने डबल टैप के पैसों से मेरा बेटा पालो। मैं बता ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਇਦਾਂ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ। ਨੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਫਿਰ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸ਼ਾयद ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਚੈਨਲ। कैसे? क्योंकि वो ऐसा बख्तों वाला तुम्हारे घर पे आया है कि आते ही उसने अपने मामू की गाड़ी चेंज करवाई है। तुम कितने के जोगे हो, तुम्हारी कितनी की नेटवर्थ थी, मेरे से बेहतर तो कोई नहीं जानता ना, मुझे तो पता है, ठीक है। आते ही अपने मामू की उसने गाड़ी चेंज करवाई है, और मैं रिश्तेदारों में नहीं जाता, ना उसकी साइड से ना अपनी साइड से, रिश्तेदारों में नहीं जाता, मैं सिर्फ दोस्तों में रह लेता हूँ। अली आसिफ, अली भट्ट, चौधरी सगीर बड़े भाई हैं ना हमारे तीनों। अली मेरा कज़न है, दूसरा अली मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, मेरा बड़ा भाई भी है, चौधरी सगीर भी मेरा बड़ा बड़ा भाई है, ठीक है। चौधरी सगीर की बेगम और अली आसिफ जब किवान पैदा हुआ मैं यूके में था, ये तब भी गए, ये जब मैं यूके से वापस आया कि तब भी गए। मिनिमम से मिनिमम 2.5 और 2 मिलियन सिर्फ मेरे बेटे की मुंह दिखाइयाँ इन्होंने दी नहीं है, अली भट्ट ने, मेरे दोस्तों ने, और इन्होंने रिश्तेदारों ने। आपके वालिद साहब और वालिदा भी, यानी बच्चे की दादी और दादा भी गए थे? हॉस्पिटल में थे, पुप्पो भी गई थी, सब वहीं पे थे, हॉस्पिटल ही थे, हाँ। सब वहीं पे थे। मैं दादा दादी की, फुप्पो की, किसी का नहीं काउंट कर रहा, सिर्फ दोस्तों यारों का कह रहा हूँ। 20 से 25 लाख रुपया मुंह दिखाइयाँ 2-2 दफा जब मैं यूके से आया और जब वो पैदा हुआ, मेरे यारों दोस्तों ने डाली हुई है। तो वो जो मेरा एक 6 माह का बच्चा है, उसके लिए तो अगले 1 साल की उसकी फीड आ जाएगी। अब आपको पालना तो मेरा इसमें नहीं है ना, फर्ज नहीं है कि ऑन को मैंने पालना है, ऑन की मैंने गाड़ियाँ चेंज करवानी है, नहीं। लेकिन आप मंथली कोई फाइनेंशियल सपोर्ट आपकी तरफ से होती है? मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट, हाँ मुझे 2 माह हो गए मैंने भेजना बंद कर दिए, 2 माह हो गए, 2 माह से आप सपोर्ट नहीं कर बताता हूँ ना, 2 माह हो गए मैंने भेजना बंद कर दिए, क्योंकि जब मुझे नजर आ रहा है कि जी 20-25 लाख रुपया मैंने ना आज तक हिसाब मांगा, ना पैसे लिए, ना मैंने कुछ कहा कि हाँ भी किधर है, कुछ नहीं, ठीक है। 20-25 लाख रुपया मेरे मुंडे ने जो देखा है यार, ये बहुत ज्यादा बातें ना इन्वॉल्व हैं। जो मेरे यार दोस्त देखने आए हैं मेरे बेटे को, वो 20-25 लाख रुपया मेरे बेटे को जो देके गए हैं, ठीक है। इतना सा 6 माह का बच्चा है, वो तो उसके अगले 1 साल की खुराक है। जो आप कह रहे हैं कि जी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, मेरे पास अभी तक सारे स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं। जो सलमान यहाँ से बैठ के ईमान को पैसे भेजता था, अली आसिफ को मैं फ़ोन करता था कि हाँ भाई लाख भेज दो, 2 भेज दो, लाख भेज दो, 2 भेज दो। शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, डॉक्टर के लिए जा रहे हैं, यार ये तो मानने वाली बात ही नहीं है कि जी रजब भट्ट हो और पैसों पे हाथ खींच ले, जिस तरह यारों दोस्तों मैंने खींचा, बेगम बच्चों पे खींचेगा। 2 माह से आपने फाइनेंशियल सपोर्ट? 2 माह से नहीं भेजे भाई, क्योंकि मुझे नजर आ गया ना कि वो अब मैं यूज हो रहा हूँ। मेरे ऊपर फर्ज मेरी बेगम है या मेरा बच्चा है, मेरा ससुराल नहीं है। अपने साले की गाड़ियाँ मैंने चेंज नहीं करवानी, मैं करवा भी देता, मुझे मसला नहीं था। अगर मैं इधर उधर कर सकता हूँ मैं उसका भी कर देता, मुझे कोई इशू नहीं था। लेकिन जब मुझे नजर आ रहा हो कि ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਚੱਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਸੁਰ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਪਡੇਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਪਰਸਨਲੀ। ਸੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ मतलब ਇਹ ਆ मेरे ऊपर ही बदमाशियां कर रहे हैं, मुझे ही वो नहीं। लेकिन रिलीजियसली नानफ का तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आपने क्या है जो बच्चे की या आपकी एहलिया की मेंटेनेंस है, ये सब चीजें तो आपने भेजना है उनको। वो भेजना है, मैं इस पे ताबेदार हूँ, मैं तो भाग नहीं रहा इस चीज पे। लेकिन 2 माह से क्यों बंद कर दिया? मैं बताता हूँ ना आपको, मैंने पहले ही यूके में बैठ के भी, पाकिस्तान आके भी 2-2 लाख रुपया 3-3 लाख रुपया महीने का भेजा हुआ है, इससे भी ज्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैंने वो पैसे लिए ही नहीं है कि हाँ भाई चौधरी सगीर आया था वो 5 लाख रुपया दे गया था जब बच्चा पैदा हुआ था, फिर अली आसिफ आया था वो 6 लाख रुपया दे गया था उस रात जब मैं पाकिस्तान आया हूँ यूके से। तो आके उस रात कम से कम कुछ 7-8 लाख रुपया था, 5-5 हज़ार कॉपियाँ मैंने ऐसे पकड़ाई थी, ये पकड़ो किवान पकड़ाया था और पैसे पकड़ाए थे। वो किधर है अब? या तो हो तुम यहाँ पर मेरे घर पे हो, मुझे पता है हाँ भाई मेरी बेगम है, उसने सूट ले लिया, उसने ज्वेलरी बना ली, नो वरीज। अब मुझे नजर आ रहा है कि जी वो भाई की गाड़ियां चेंज हो रही हैं, भाई सुखे डाले लाई जा रहा है, तो मैं क्यों दूंगा पैसे भाई को? पालना मैंने, मेरे बच्चे के लिए तो वो 20-25 लाख रुपया बहुत है अगले 6 महीने साल के लिए। अच्छा, इंटरेस्टिंगली एंड वेरी अलार्मिंग एट द सेम टाइम, आपके जो व्लॉग्स चल रहे हैं उसके नीचे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, आई नो डैट। अच्छा, अब ये बच्ची की इमेज है, पिक्चर है, यहाँ पे पॉज किया, हाँ
हाँ यहाँ मैंने पॉज किया है। मिनसा। ये आपकी खाला की बेटी। खाला की बेटी है। इस बच्ची की फोटो है और उसके नीचे कमेंट्स हैं। सबकी इंपॉर्टेंस है, माँ बाप बहन दोस्त, हाँ, लेकिन बीवी और बेटा उनकी वैल्यू क्यों होगी? वो तो घर है, गैर हैं, उनका क्या है? एक वक्त आएगा जब सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएंगे, तब एहसास होगा कि बीवी और बच्चे ही काम ये आते आप हैं। पब्लिक ना कीजिएगा, ये ले। सारे रिलेशनशिप से ऊपर रिश्ता बीवी का रिश्ता होता है। कान पे लगा के, सिर्फ आपके लिए कह रहा हूँ, कान पे लगा के सुन लें और ऊपर नीचे रिप्लाई क्या आया वो देख लें। कान पे लगा, मुझे इजाजत है कि मैं इसको पब्लिक कोई ऐसी नहीं यार। गलत बात है क्या? मैसेज रहने दे, छोड़े, मुझे नहीं इतना डीप जाना भाई। मेरा मैसेज मैं सुन लूं इसको? हाँ, मेरा मैसेज सुने। ਮਤਲਬ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਸੋ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, 2 ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਖਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਸਹੀ ਆ ਗਲਤ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਆ ਨਾ। ਦੋਨਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਨਾ। एक कोई रिकॉर्डिंग है जो अपनी सुना रहे ने, है ना? आप कहते हैं तुम पर्सनली आप सुन लो। आपका मैसेज सुन लिया मैं। ठीक है, अब आगे रिप्लाई नहीं मुझे किया, पता है एटीट्यूड देखे ना, मैसेज किया ना। अच्छा, रिस्पांस देख लूं मैं? हाँ, फिर आगे मैंने फिर ये वेडनेसडे 23 फरवरी का आपका मैसेज, नेक्स्ट डे फिर मैसेज किया। उस मैसेज का जो रिस्पांस है वो फ्राइडे को है। नहीं, फ्राइडे को आपने मैसेज किया है, दोबारा किया क्योंकि पहले वाले मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। ठीक, I'll be there चैट पढ़ाते after जुम्मा prayer, please make sure कि Van is ready, there is no need to come, there is no need to come। हाँ। मत करें भाई, छोड़ दे, रहने दे, मेरे हाथ जुड़े हैं, इस टॉपिक में बंद कर दो। रजब को जरूरत नहीं है किसी और चीज़ों की। आप ये जो मेरे कमेंट सेक्शन में आते हैं, मैं पढ़ता हूँ, जो ये मिनसा है ना, मिनसा मेरे हाथों में पैदा हुई है, मेरी खाला की बेटी है, ठीक है। मैंने इसको शॉपिंग करवाई ईद की, अभी आयत को भी करवानी है, तो मैंने किया नहीं मैसेज, मुझे आगे से मैसेज आ गया, देयर इज नो नीड टू कम। ठीक है, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੋ ਨੀਡ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ है ना। देखता हूँ भाई, नीचे कमेंट है, रजब भाई think about Kivan and Iman when you have affairs with other girls। Iman does not come to any podcast that you have cheated Iman because Iman knows the fatherless life। मतलब ये बहुत लंबा कमेंट है। हाँ, मैं पढ़ता हूँ सारा दिन ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਵ ਅਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਤਾ नहीं ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ कुछ चीट किया एहलिया को भाई मैं बताता हूँ, वो जब यूके में था, आपने अपने पॉडकास्ट में पहले भी 2-3 दफ़ा सवाल किए हैं, मेरा पास था, उसको मुझे निकालते निकालते टाइम लग गया, उसका निकाह हो गया, उसके बंदे ने मेरे पे अटैक करवा दिया, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी चली। ज़ारा की बात कर रहे हैं? हाँ, ज़ारा की बात कर रहा हूँ, तो वो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी चली, वो किसी से छुपी नहीं हुई। खावर दुरानी उनके एक्स हस्बैंड जिनका उनसे निकाह ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ शादी तो पहले एक्स नहीं है, उनका निकाह हुआ उनसे। एक्स कहाँ से आ गया, अभी उनका निकाह हुआ। उनसे निकाह में है अभी। हाँ, उनसे निकाह में है। तो एंड ही इज फ्रॉम यूके आई थिंक। वो नहीं, खाबर दुरानी मुझे नहीं आइडिया, उस टाइम पे था यूके में, जब मैं यूके था ना तब वो यूके में। ठीक, अभी कहाँ पर है मुझे नहीं आइडिया। तो मुझ पर अटैक हुआ, मेरे लिए ज़रूरी हो गया वो बताना कि ये अटैक किसने करवाया है, और मैंने उस चीज़ को एडमिट भी कर लिया। मैंने एडमिट कर लिया कि यार भाई ठीक है, मेरा एक अफेयर था जिसको निकालते निकालते मेरी काफ़ी टाइम लग गया मुझे, वो शादी से पहले का भी था, तो मैंने उस चीज़ पे अपॉलॉजी भी कर ली। या तो वहीं पे चीज़ खत्म कर दो। ये अफेयर उसी वक्त पब्लिक हुआ था जब आप यूके में थे? नहीं, उससे पहले आपने? उससे पहले हो गया था भाई, उससे पहले हो गया था। मैंने पर्सनल में भी अपनी बेगम से माफ़ी मांग ली थी। ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਥ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ,
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ Cheat ਕੇਸ ਵੀ ਦਾ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ, ਹੈਗਾ ਕਈ ਨਾ। ਕੁਛ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने इतने गट्स दिए हैं, मैं बैठ के अपने चैनल पे 9 मिलियन बंदे के सामने भी एडमिट किया और माफ़ी मांगी अपनी बेगम से, माफ़ी मांगी कि यार एक चीज़ थी जिसको निकालते निकालते मुझे बहुत टाइम लग गया और ये गलत है, मैं उसके लिए माजरत करता हूँ। और उसने मुझे माफ़ भी किया, घर भी आई, एक दिन व्लॉग भी किया आके, ठीक है, माफ़ भी किया। लेकिन अगर उसी चीज़ को ड्रैग करना था, अब ये परसों की बात है, कल की, ऑन बैठ के अपनी ब्रॉड में कह रहा है कि जी मेरी बहन के ऊपर चीट किया जब वो प्रेग्नेंट थी, जी ठीक है। जब मेरी तुम्हारी बहन की और मेरी बात ही हो गई है, मैंने उससे माफ़ी मांगी है पब्लिकली भी आके, प्राइवेटली भी, उसने मुझे माफ़ किया है, हम मूव ऑन कर रहे हैं, तो अब इस बात को खरीदने का मकसद क्या बनता? अब क्यों? अब मैं हूं तो पकड़ाओ, मुझे बताओ। उसके बाद आपके कोई अफेयर्स मेरी उससे कोई बात ही नहीं रही, मेरी उससे बात खत्म हो गई थी, उसका निकाह हो गया। मैंने अपनी व्लॉग में आके उसको मुबारकबाद दी, उसके खावन को मुबारकबाद दी। जब आप यूके में थे, मेरा एम्फेसिस फिर यूके में है, क्योंकि यूके जाने से पहले आपकी मैरिटल लाइफ बिल्कुल ठीक थी, इट वाज ऑल गुड। यूके जाने के बाद कंट्रोवर्सीज बनी, क्या वहां पे आपके अफेयर्स थे? मैं बता नहीं अफेयर नहीं, मैं घर से नहीं बाहर निकला वहां पर, मैं सिर्फ लाइव करता था बस, मैं घर से बाहर ही नहीं निकला वहां पर, मैं कहीं गया ही नहीं। ये आपकी क्लब की वीडियो हाँ, एक दो दफा जहाँ पर गया हूँ वहाँ पर वीडियो बन गई, उसको कहीं गया ही नहीं मैं। एक लड़की के साथ आप डांस कर नहीं रहे नहीं, लड़की वहाँ पर कोई नहीं थी, वो क्लब के अंदर वाली बात सब इकट्ठे ही होते हैं, ठीक है। वो मेरे साथ कोई लड़की नहीं थी, वीडियो फिर चला एक कसिनो की वाइड निकल ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਗਏ ਇਹ ਕਲੱਬ ਵੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਵੀ ਨੱਚਿਆ। ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है। हाँ, वीडियो निकाल दें, चला दें, इधर साथ चला दीजिएगा। एक कसिनो की निकल गई, एक क्लब की निकल गई, ठीक है। तो वो जहाँ तक बात रही अफेयर, तो फूड की अफेयर मेरा कोई नहीं रहा, मैं पूरा हो गया था अफेयरों से। मेरी जान छड्डो भाई बात। यूके जाके आपकी जिंदगी डी ट्रैक हो गई थी? यूके तो ये अभी लास्ट में गया हूँ, मैं तो उससे पहले भी 5-6 माह डिटेन ही रहा हूँ, दुबई, कतर, सऊदीया। नहीं, मैं रिसेंट यूके की विजिट की बात कर रहा हूँ, जहाँ से अब अभी हाल ही में वापस आए। वहाँ से तो मैं निकलने के काबिल ही नहीं रहा ना भाई, यूके से मैं निकलने के काबिल ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने मेरा वीज़ा भी कैंसिल हो गया था। उसके अलावा मैं निकल के कहीं और जा भी नहीं सकता था, ठीक है। अगर कहीं जाता तो फिर यूके वापस कैसे आता, क्योंकि मैं था विजिट वीज़ा पे, ठीक है। तो विजिट वीज़ा पे आप इतना अगर करते हैं ना रैपिडली ट्रैवल, तो वो फिर मशकूक बन जाती है आपकी हरकत। और आपको डिपोर्ट नहीं किया था, आपका वीजा कैंसिल हो गया वीज़ा था, कैंसिल हुआ था, मैं खुद आया था। और इसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से सस्पिशियस एक्टिविटी थी। नहीं, सस्पिशियस कौन सी? आई मीन कि वो विजिट पे तो आप इतनी देर तक नहीं रह सकते थे। नहीं, और उसके नहीं। बाद जो वो किसी ने होम ऑफिस को रिक्वेस्ट डाली थी कि इसके ऊपर FIRs हैं, फिर आर्टिकल्स लगाए थे कुछ न्यूज़ चैनल्स के। और यूके US की जो एम्बेसीज हैं, जो होम ऑफिस हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं इन चीज़ों को लेके ना, फेक असाइलम्स को, टेररिज्म को, फिर उन्होंने कैंसिल कर अगर आप दोबारा यूके जाना चाहें तो जा सकते हैं। मैंने केस फाइल किया हुआ अपना, ठीक है। तो अभी तो मेरा नाम ही नो फ्लाई लिस्ट में है, PCL में नाम है, हटेगा तो चले जाएंगे। अभी वहां से गोएड नहीं है? अभी नहीं है, मेरा ख्याल लग जाएगा 15-20 दिन। अच्छा, एलिगेशन आपके ऊपर ये है कि आप कि क्योंकि अफेयर्स बहुत ज़्यादा और लाइफ आपकी कुछ इस तरह की हुई यूके के अंदर जाके इन पर्टिकुलर, कि जो काफ़ी मोतरस थी। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ, ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਫੋਟੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ ਰਜਬ ਬੱਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ठीक है। कि हमारा सन इन लॉ नहीं, यूके में वो अब देखें, या मेरा ब्रदर इन लॉ ऐसा- जाके देखें, यूके मेरी में बात ऐसी सुनो। एक्टिविटीज कर रहा है। मेरी बात सुनो, मैं लाइव बैठा हुआ हूँ, मेरा मैं यूके के अंदर 3-4 महीने लाइव की है टिकटॉक की ना, मैंने 3-4 माह लाइव की है, दबा के की है, क्योंकि मेरा व्लॉग्स की तरफ ध्यान नहीं था। व्लॉग्स में प्रॉपर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे जो सारे यार दोस्त हैं, मेरी फैमिली है, जिनके साथ व्लॉग मुकम्मल होता है, वही नहीं थे। तो मैं अकेला क्या व्लॉग करता, ठीक है। मेरी फैमिली व्लॉग करती रही, मेरे दोस्त करते रहे व्लॉग, मैं नहीं था। मैंने दबा के लाइव की, पैसे हर बंदे की जरूरत है, मैंने पैसे कमाने थे। अब मैं बैठा वहाँ पर अगर किसी के साथ मैच भी खेल रहा हूँ ना, टिकटॉक लाइव में किसी लड़की के साथ मैच भी खेल रहा हूँ, तो मेरा नसीब इतना माड़ा है कि वो सुबह हर मैगजीन चला, हालांकि इतने लड़के बैठे हुए, इतनी लड़कियां बैठी हुई मैचेस खेलते हैं, वो हर मैगजीन लगा देगा कि रजब भट्ट जो है इंडियन लड़की के साथ फ्लर्ट करता हुआ पकड़ा गया। नहीं, इनअप्रोप्रिएट गुफ्तगू भी कर रहे हैं खवातीन के साथ। कौन सी ये देखें, ये देखें। मुझे पता तुम्हारा पेट निकला होगा। वो सबको पता है। क्या कर रही ये सामिया हिजाब है गालिबा। हाँ, तो वो आपको नहीं पता इनका, ये देखें। इनका आपको नहीं पता, इनका पूरे पाकिस्तान को पता। अब मैं कोई वो नहीं, मुझे सीरियसली नहीं पता है। हाँ हाँ, आपको नहीं पता, सही नहीं, मैं ये जानता हूँ कि आप तो सामिया हिजाब है। कान से रोटी खाते हैं ना आप, है ना। देखें, देखें। अच्छा, आपको ये पता कि ये सामिया हिजाब है, फिर मैंने वहाँ पर क्या, क्योंकि वो न्यूज़ में थी ना। ਕੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ तुम्हें कैसे पता कि मुझे पता तुम्हारा पेट निकला होगा? वो सबको पता है। हाँ, सबको पता है।
सबको पता है। अगर आपको मेरी बात में समझ लग गई यार, सबको पता है, सबको किसी की मेरी बात सुने ना। अगर आपको शहजाद हकीम लोहा पहाड़ की वीडियोस का पता है तो आपको इसको वीडियो को भी पता ही होगा। जाहिर है मैंने पॉडकास्ट करना था ना हकीम शहजाद साहब के साथ। हम सोशल मीडिया पे ही रहते हैं। इनके साथ पॉडकास्ट का मौका भी मिला लेकिन मैंने किया नहीं। इनके साथ अच्छी बात है, नहीं किया आखिरी पॉडकास्ट में। बाबूजू नहीं किया। पता क्या बात होती है, सोशल मीडिया पे रहते हैं तो वहां पर अब मैं टिकटॉक लाइव के ऊपर भाई कोई वो टोपी पहन के तस्वीर पहन के तो लाइव नहीं कर सकता, हाजिर दिमागी बहुत जरूरी है। ठीक है, उसने कोई बात की, मैंने कोई बात का जवाब दे दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं कोई उसके साथ गलत लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। इसमें क्या, मैं कोई 80s का बच्चा तो नहीं हूँ, इसी सदी का ही हूँ मैं तो क्या ही नहीं लगा कि मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं बहुत साहू हूँ भाई। ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਲੱਭਦਾ। ये आयशा जट साहब ਜਿਹੜਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਘੱਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਆਈਡੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਟਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀਆਈਡੀ ਵਾਲਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੱਸਦੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੁਛ ਦਇਆ ਕੁਛ ਤੋਂ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਮਤਲਬ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਦਇਆ ਕੁਛ ਤੋਂ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये वो एलिगेशंस भी मेरे सामने पड़े हुए हैं। मेरा नहीं है उसमें कुछ भी, वो जिसका है वो उसका पॉडकास्ट आप अलग कीजिएगा, मेरे से मेरी बात करें। आपके कजन है? हमारे कजन खाला। लेकिन आप इस मसले में आ गए थे और कुछ वीडियोस वेरी बहुत छोटा भाई है, फिर निकलवाना तो पड़ना था उसको, निकलवाया किसी न किसी तरीके से। आपके ब्रदर इन लॉ के पॉडकास्ट के अंदर भी मैंने उनसे कहा कि आप कॉल करें भाई को फौरी तौर पे कॉल लगाएं, और ही वाज ब्रेव इनफ और ही वाज कर्टियस इनफ कि मेरी रिक्वेस्ट मानी, और उन्होंने आपको कॉल एक बार नहीं 2 बार कॉल की, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं था। मैं जान सकता हूँ कि आपने कॉल क्यों पिक नहीं की। मैं बता देता हूँ आपको, मैंने आपका पॉडकास्ट देखा, मैंने देखा कितना कि वो ब्रेव इनफ थे। पिछले से 6 बंदे उनको जो है वो बताने वाले थे, यही तो मसला है, 6 बंदे बताने वाले थे कि हाँ भाई नहीं कॉल करनी। फिर एक बंदा कह रहा है कर लो, आप कह रहे हैं कर ले, आपने इनकरेज किया, फिर वो की, ये उनकी ब्रेवरी है अकॉर्डिंग टू यू। दूसरी बात ब्रेवरी वो होती है कि आप मुझे कहें फोन करो, मैं टक करता भी फोन करूँ, तो मैंने नहीं करा, मैं कह दूँ मैंने नहीं करना जान, ठीक है, ये हुई ब्रेवरी। दूसरी बात, मैंने क्यों नहीं उठाया, मैं क्यों उठाऊंगा, मुझे नहीं पता कि यार 2-3 दिन से आपकी वीडियोस चल रही हैं टिकटॉक पे जी, आप रेहान तारिक को पॉडकास्ट देने के हैं, और रेहान तारिक का कोई पॉडकास्ट रजब भट्ट की गुफ्तगू को गैर कंप्लीट हो जाए, नॉट पॉसिबल यार। जाहिर बात है आप भाई है ना मेरे, आप प्यार करते हैं मेरे से, या आप बात कर लेंगे या आपकी ऑडियंस कोई ना कोई रजब के बारे में सवाल पूछ लेगी। नहीं वो तो पॉडकास्ट था ही आपके बारे में। ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਹੀ ਨੇ। हाँ, मुझे पता था कि वहां पर बैठ के मुझे फोन हो रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल से तो मुझे कोई फोन आया नहीं। मैं आपको भी चैट खोल के दिखा देता हूँ, 1 साल से मुझे कोई फोन नहीं है, कोई मैसेज नहीं है। आपको अंदाजा हो गया था कि ये पॉडकास्ट से कॉल आई? मैं अल्लाह की कसम वैसे भी सो रहा था, और जब मैंने देखी थी कॉल मुझे आइडिया हो गया था पॉडकास्ट में बैठा हुआ तब फोन कर रहा, क्योंकि पिछले 1 साल से मुझे ना मैसेज ना कॉल, मुझे जवाब सिर्फ लाइव के ऊपर ही आके मिल रहे हैं, मुझे जवाब दिए जा रहे हैं, मेरे ऊपर बदमाशियां चलाई जा रही हैं, वो ब्रॉड के ऊपर ही आके हो रही हैं, तो मुझे कॉल आउट ऑफ नोवेयर क्यों आएगी, पॉडकास्ट में आई थी इसलिए मैंने नहीं उठाई, मैं क्यों उठाऊं। और आप अपने ब्रदर इन लॉ को थ्रेट भी करते हैं? मैं जी, हाउ, आपकी लोकेशंस, उनकी लोकेशंस ट्रेस होती हैं? मैं करता हूँ, नहीं, इल्जाम है आपके ऊपर। भाई मेरा कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों में, मेरे पास और बहुत काम है करने को। ही इज़ नो वन कि मैं उसको जो है वो ट्रेस करूँ, मैं उसको थ्रेड करूँ। ही इज योर ब्रदर इन लॉ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੇਵਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨ ਦੀ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲੇ ਦੀ साले ਆਈਡੀ दी आईडी ठीक ਕਿ मैं ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਆਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਇਨਕਮ ਆਏਗੀ ਉਹ ਕੇਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ठीक। मैंने ना अभी कुछ टाइम पहले मेरा ना कोई मसला चल रहा था, एक हमारा दोस्त भी था, काफ़ी अच्छा दोस्त था मेरा, मैंने भाई कहा था उसको, काफ़ी सवेर मसला चला कि आप माँ बहन के ऊपर बात नहीं बर्दाश्त करते, ठीक है। उन्होंने आई डोंट नो कि आपकी ये चैप्टर के अंदर ये चीज़ है या नहीं है, उन्होंने मेरी माँ बहन को बहुत बुरा भला कहा, उनकी गलत AI वीडियोज़ बनाई, वेरी अनजस्टिफाइड, ठीक है, उन्होंने वो सारा कुछ चलाया। मैंने अपनी ब्रॉड के ऊपर ना कोई 35-36 हज़ार बंदा बैठा हुआ था, और मैंने कहा था कि यार वो बंदा जिसने ये सारे काम किए हैं ना मेरी माँ बहन के साथ, मेरी बेगम के साथ, मेरे बाप के साथ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। लेकिन आज मैं ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि जिसने उसका दरवाज़ा भी रखना है, मेरा दरवाज़ा, हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स थे ना कुछ काफ़ी, मेरा दरवाज़ा उसके लिए बंद है, चाहे मेरा दोस्त है, चाहे मेरा रिश्तेदार है, चाहे मेरा कज़न है, चाहे मेरा प्यो ही है। जिसने 2 दरवाजे रखने हैं, यानी जिसने उसके साथ भी रखनी है, मेरे साथ भी रखनी है, मेरा बंद है, वहाँ रहो, सुखी रहो, ठीक है। आ गल चंगी है। किसी और ने तो फिलहाल दरवाज़ा उसका चूज़ नहीं किया था। वेरी नेक्स्ट डे मेरा ब्लड, मेरा रिलेशन, मेरा ब्रदर इन लॉ, जिसको आप कह रहे हैं मेरा ब्रदर इन लॉ, उसके साथ बैठा हुआ था, जिसने उसकी माँ की, उसकी बहन वो की, वीडियो मैंने देखी है, उसकी बहन की, मेरी माँ की, मेरी बहन की, मेरे बाप की वीडियोस AI बनाई, उनको नचवाया, और मेरा ब्रदर इन लॉ के साथ मैच में बैठा हुआ था, और उसको कह रहा था आप मेरे मुर्शिद हैं, जस्ट फॉर
फ्यू कॉइन्स, 1-2 हज़ार बंदे की व्यूअरशिप के लिए, कहता आप मेरे मुर्शिद हैं और मुझे पता आपने कुछ नहीं किया। जो आपका बहनोई है उसने जवाब ही कोई नहीं दिया, उसने छेड़ा ही नहीं है, उसके हक में एक बयान आपके मुंह से नहीं निकला। भाई कौन कौन सी चीज मैं जस्टिफाइड करूंगा? उसके हक में उसके लिए आपके मुंह से आज तक कोई बयान नहीं निकला, पिछले 1.5 साल से नहीं निकला, छोड़ दो। यहां पर जो आपकी माएँ बहनें नचा रहा है, जिसने नचाई है, मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया। और जब मैंने कह दिया कि हमें जिसने 2 दरवाजे रखने हैं वो मेरे दरवाजे पे कभी ना आए, ठीक है? मैं वो वाला बंदा नहीं हूं कि आज मेरी इसके साथ लड़ाई हुई है तो 4 दिन बाद मैं इसके साथ ही बैठ जाऊंगा। मैं जहां से चला गया मैं चला गया। मेरा ब्रदर इन लॉ जिसकी अपनी बहन और मेरी बेगम भी नाची है उसी एआई वीडियोस के अंदर, वो 4 दिन बाद उसके साथ ग्राउंड में बैठ गया। मेरा बयान सुनने के बाद उसके साथ बैठ गया, क्योंकि उसने मोनोपोली एक की कि हाँ भाई ऑन लैके उसी ऑन फेम दवांगे। अब ऑन वहां पर कोई धड़े का बंदा होता, ऑन कोई वहां पर नस्ली बंदा होता तो ऑन कहता चल निकल, तू मैनू कहता फेम दवेगा। मेरे अपने घर बथेरा फेम है, मैंने तेरा फेम नहीं चाहिए, तू मेरी मां भैन दे नाल होता कोई एहो जी मेरी वीडियो बनाई ने। ऑन उसकी फर्स्ट कॉल पे 12 दफा उसके पास किया, 12 दफा उसके पास गया, जाके कहता आप मेरे मुर्शिद हैं, मुझे पता आपने कुछ नहीं किया। हाँ वो रजब भाई ने गलत किया, मेरा दरवाजा बंद है। It was very inappropriate on his part. भाई बहुत चीजें हैं। देखिए मैं इसको मजीद ड्रैग नहीं करना चाहता, मैं इस इशू को क्लोज करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने उस पॉडकास्ट में, आई एम सॉरी टू कट यू हियर, उस पॉडकास्ट में मैंने आपके ब्रदर इन लॉ से प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी ये बात रजब भट्ट साहब के सामने जरूर रखूंगा। मैं अपना वादा निभा रहा हूँ। कौन सी बात? वो ये समझते हैं, ये एक आप मेरी मैं लिसन टू मी नाउ, वो ये समझते हैं कि अगर इस रिश्ते को बचाने के लिए मुझे सोशल मीडिया छोड़ना भी पड़ता है, ये सवाल हुआ, तो मैं सोशल मीडिया छोड़ने को तैयार हूं। मेरी बहन का घर अगर मेरे सोशल मीडिया को तर्क करके, मेरी जुबान बंद करके किसी भी तरीके से बचता है, आई एम रेडी फॉर इट। सोशल मुझे बहुत खुशी भी थी इस बात। हाँ बहुत अच्छी बात मैंने कहा जी आपका ये पैगाम के लिहाज से बहुत अच्छी है। आपको मैनिपुलेट करना हो तो बहुत अच्छी है, ठीक है? सोशल मीडिया पे लाने वाला भी मैं हूँ, इनको पढ़ी लिखी फैमिली बताने वाला भी मैं हूँ, अपने आप को जाहिल कहने वाला भी मैं हूँ, इसको मशवरा देने के लिए भी मैं हूं कि यार लाइव आया करो, कुछ 4 पैसे कमा लो। नहीं, इस बात को वो एक्नॉलेज करता है। सुन लेना, लेट मी कंप्लीट। वो भी मैं ही हूं, तो मुझे क्या ही इशू है उसके सोशल मीडिया पे होने से, रहे मेरी तरफ से, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन ये टोपियां, ये अब कल इन्होंने लाइव की, फिर बड़े हमें ये बात, इसी बार ये लास्ट टॉपिक प्लीज खत्म है यहाँ से, इस टॉपिक को क्लोज कर दें। ठीक, कल लाइव किया भाई मेरी ने, पूरी लाइव में क्या कि जी हाँ जी सुलह करनी है, बताएं। मैं जहाँ कहते हैं आ जाता हूँ, मैं नीचे बैठ के मार खा लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ। ये ड्रामेबाजी हमें अच्छी से नजर आ रही है, और बीच में आप बार बार म्यूट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो है वो वालिदा मोहतरमा आपको इंडिकेशंस दे रही हैं, अब ये कहो। यहाँ से ईमान इंडिकेशंस दे रही है, अब ये कहो, अब ये कहो। म्यूट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, म्यूट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। अब कहना मतलब कि अपना माइंड नहीं चला ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਮਿਊਟ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। बंदे को भी नजर आ रहा है कि तुम्हारी अपनी जुबान नहीं बोल रही, ठीक है? सारी बात आप करके कि जी मैं नीचे बैठ जाता हूँ, मैं माफी मांग लेता हूँ, फिर एंड पे आप कह रहे हैं कि जी आप सिंपतियां ले रहे हैं। हम सिंपतियां नहीं लेते, आप सिंपतियां लेते हैं। ये कहाँ की सुलह है? और वैसे भी अब तू नीचे बैठ जा, तू माफी मांग ले, मेरी तेरे साथ कोई लड़ाई नहीं है, मेरी तेरे साथ कोई सुलह नहीं है। जब मैंने कह दिया था वहां पर बैठ के 35,000 बंदे के सामने कि जिसने 2 दरवाजे रखने हैं, मेरा दरवाजा उसके लिए बंद है, तो मेरा दरवाजा बंद है भाई। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। बस आपके ब्रदर इन लॉ ने ये भी कहा इनफ इज इनफ। लास्ट वार्निंग, अगर इसके बाद ये मुझे क्या है? ऐसी चीज, देखिए सुने लास्ट वार्निंग, अगर इसके बाद कोई ऐसी चीज मंजरे आम पे आई, झूठी बना के आई या कोई आई, तो फिर मैंने सच्ची चीजें निकालनी शुरू कर देनी है, और मुझे फिर रोक कोई नहीं सकता। अभी भी खामोशी रखी है, आगे भी खामोशी रखूंगा। आज के बाद अगर किसी ने ये हरकत की तो फिर मैं ऐसी ऐसी चीज निकालूंगा ना, ऐसी ऐसी चीज कि लग समझ आएगी सबको, थर्ड पर्सन को भी लग जाएगी और बाकी सबको भी लग जाएगी, ठीक है? सब रिकॉर्ड मेरे पास ट्रैक हो गया, सब रिकॉर्ड है, किधर से क्या हो रहा है, किधर से पैसे जा रहे हैं, किधर से ये जा रहा है, सारा रिकॉर्ड आ गया। किधर से पैसे जा रहे हैं, किधर से क्या, और एक एक चीज को एलिगेशन या इल्जाम लगाया। हाँ जी, खबरदार मैं कर रहा हूँ, खबरदार कर रहे हैं मशीन मैं कर रहा हूँ मेरे वॉइस नोट्स क्यों लीक कर रहे भाई। हैं? मेरे एआई जनरेटेड वॉइस नोट्स और चैट्स क्यों लीक की जा रही? वो एआई है तो उसके ऊपर केस कर दे। एआई के ऊपर तो एनसीसीआई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जब आप वो करेंगे केस तो उसके पास भी कुछ ना कुछ होगा, वो फिर निकाल के रख देगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग कि ये ले भाई, ये आपके वॉइस में सब जाके क्लिक करें तो आपकी प्रोफाइल आईडी भी खुलती है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स एआई नहीं होती, फॉरेंसिक कर लेना जाके, क्यों नहीं करता? बात बात पे कुरान तो आप उठा ही लेते हो, इस बात पे उठाओ ना। रजब भट्ट साहब, नाउ लिसन टू मी, मैं इसको क्लोज कह रहा हूँ। देखिए उस पॉडकास्ट के अंदर भी एक ही बात थी, दरवाज़ा बंद करके मियाँ बीवी आपस में मसला हल कर लें,
जेड़ा तुसी जिन कटना है काट लाओ भाई मैं एक बात बताता हूँ, ये इस पॉडकास्ट में भी हम ब्रदर इन लॉ ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, चेंज कर लेते उसमें भी हम राइट लेफ्ट को ज्यादा डिस्कस कर रहे थे। भाई चेंज कर लेते हैं ना आप, इसमें ये वाला पैगाम ना दें, मैं आपको एक पैगाम दे देता हूँ, आई एम डन विद दिस मैरिज, सॉरी आई एम डन विद दिस मैरिज, ठीक है, ਉਹਦੇ इतना ਨਾਲ काफी है। खत्म आपको क्या लग रहा है? मुझे ये सुन के खुशी हो रही है। नहीं आपको खुशी नहीं कि होगी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜੈਨੂਇਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖਰੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਡਰਦਾ ਹੀ ਵਿਆਹ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ, 4 ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਨਾ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ करता कि मैं मैरिज कि मेरे अंदर जो सारा कुछ है, मैं मुनाफकत की यारी दोस्ती नहीं चला सकता, मैं मुनाफकत का रिश्ता क्या ही चलाऊंगा भाई। ना उसकी को मजबूरी है ना मेरी को मजबूरी है, ठीक है। किवान रहा, जहाँ तक बात किवान की, किवान सुल्तान भट्ट की, वो मेरा बेटा है, ठीक है। मेरे पास जो कुछ भी है वो उसी का है, ठीक है। उससे मिलने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि मैं इस शादी को इस तरह से लेके चल लूँ कि मेरी बेगम मेरी माँ को परफ्यूम चोर कह रही है, मेरी सास मेरे बाप को कह रही है कि जूते जितनी औकात है, मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो कह रहा है वो पंगा पड़ गया, नहीद आ रही है। भाई खुदा की कसम मुझे पता है कि मैंने कौन सा पत्थर कौन सा चीज अपने ऊपर रख के तो उसको कंट्रोल किया था, वरना मैं इसकी जुबान इसके हलक से खींच लेता जब इसने कहा था ना नहीद आ रही है घर। तेरी क्लास फेलो नहीं है, मेरी माँ है, ठीक है। मैं ये सारी चीजें रख के अपने दिल के अंदर, और 25 मैसेज वो जो मैं यहाँ पर निकाल नहीं सकता, मदर को क्या है? ना पहले निकाले हैं ना अब निकाले हैं। जिन्होंने आपको स्टफ भेजा, जिन्होंने मुझे स्टफ भेजा, उन्होंने ही उस्मान ज़ेब को भेजा और 4 पॉडकास्ट वालों को और भेजा, शायद उन्होंने देखा या नहीं देखा मुझे नहीं पता, ठीक है। जहाँ वो जब चाहेंगे वो 1 मिनट से पहले क्लियर कर देंगे कि ये कुछ AI, ये कुछ टेम्पर्ड नहीं है, पूरा ग्रुप चल रहा है। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज्जत दी है, अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी बहुत है, शोहरत मुझे दी बहुत है, हौसला दिया है, उसी बहुत हौसले पैसे दिए सुन लेना और भाई, एक प्यारा सा बेटा दिया है। भाई वो मेरी जिंद जान है, मेरा हर चीज पे कुर्बान है, ठीक है। और आगे हालात वाकयात ही इस चीज को जो है ना वो जस्टिफाई करेंगे कि वो मेरे पास रहेगा या माँ के पास रहेगा। उसके बाद ये कि जो कुछ भी मेरे पास है, चाहे 1 है, चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1 अरब है, वो उसी का है। आई हैव गॉट सो मेनी मैसेजेस आई in my नो, inbox. मेरे पास लोग 5,000 आते हैं। लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई अरे प्लीज रजब भाई को मदद। आप सही कह रहे हैं, लेकिन लोग मेरी फीलिंग्स नहीं समझ ਕਿ सकते। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦੇ ਵੇ ਕਿ ਜੁੜ ਜਾਣੇ, ਜੁੜ ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਡਿਵੋਰਸ ਨਾ ਪਰ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਡਿਵੋਰਸ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਪਰ ਹੌਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਡਿਵੋਰਸ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਿੱਚ Involvement ਦਖਲ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ। ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੰਮ। ਸਕਦਾ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ। बेटा होगा ना जो इकलौता होगा, जिसकी माँ ने जिसके बाप ने उसके लिए बहुत ज्यादा जतन किए होंगे, मनतो मुरादों से लिया होगा, ठीक है। और फिर वही माँ उसकी शादी करके लेके आती है अपनी पसंद की लड़की से, और वही लड़की आके उसको कहती है तुम परफ्यूम चोर हो, जिसके एविडेंस मेरे पास है, सारा कुछ है। ये तो छोटी सी बात है यार, परफ्यूम चोर हो, मैं सिर्फ जुबान पे लेके आ रहा हूँ क्योंकि ये निकल चुकी हुई है बात, ठीक है। उसकी सास कह रही है कि तुम्हारा तो बाप की औकात ही कोई नहीं है। उसका भाई जो है वो कह रहा है मैं लेके आया था जो एजुकेटेड फैमिली है, छोटी फैमिली है, खुश रहेंगे जितनी की मेरी है उतनी की उसकी है, ठीक है। उसका भाई कह रहा है कि जी नहीद आ रही है हमारे घर, पंगा पड़ गया। किनको बता रहे हैं? फैंस को, एडिटर्स को। करो लीक, ये कह रहा है ना कि मैं फिर वो लीक करूंगा, कर लीक। ये सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मैं इसके सामने नहीं आया, मैं इसकी जुबान इसकी हलक से खींचता जो लफ्ज़ इसने मेरी माँ के लिए यूज़ किया ना, नहीद आ रही है। दूसरी तो चलो जो उन्होंने कहा मेरे बाप की औकात नहीं है, वो भी मेरी माँ ही है। गलत कहा भाई वो गलत कहा ना, वो गलत कहा, वो justified नहीं है। रेहान भाई मैं अपने दिल के अंदर ये बातें रख के ये रिश्ता नहीं निभा सकता, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। अच्छा, मेरी अभी सिर्फ 30 साल एज है, उसकी 27-28 साल एज है, 28 साल एज है उसकी भी। ना मेरी कोई मजबूरी है ना उसकी मजबूरी है। आई एम डन विद दिस मैरिज। और ये टॉपिक प्लीज खत्म कर दें, पॉडकास्ट बोरिंग हो रहा। थैंक यू। आपके बहुत सारे फैंस कोई बात बहुत नहीं, दुखी होंगे। मुझे अनसब्सक्राइब कर दें, मुझे ना देखा करें, ठीक है। पता क्या बात है, अगर आप कहें कि जी जिसने 28, 29, 30 साल का बेटा पढ़ा किया, पैदा किया, मजदूਰੀਆਂ की, सिक्योरिटी गार्ड ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਫੈਨਸ ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਧਰੋਂ ਆਈ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੁੜਦੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ की कपड़े सिलाई किए,
मैंने ऑफिस बॉय के काम किए, वो सारा कुछ भूल के मैं 1 साल पहले की शादी देख लूँ, ठीक है, और उस शादी में रहा भी ऐसा रहा मेरे घर सिर्फ 1 महीना ही हो, 1.5 साल की शादी में सिर्फ 1 महीना आप मेरे घर रहे हो, वरना आपकी माँ के घर बैठे हो, मैंने पैसे भी जमाए हैं, हर चीज़। ये भाई सुन लेना, लेट मी कंप्लीट, मेरे अंदर की भी भड़ास है जो मैं कभी बोला नहीं, ठीक है, हर चीज़ आपकी पूरी की है वहाँ पर बैठ के भी। 20-20 सूट आपके 1 महीने के अंदर आए हुए हैं और डिजाइनर्स आए हुए हैं, समझ लगी है। प्रमोशन मैंने की हैं और इवेंट्स आपके मैंने किए थे, शादी भी इस तरह हुई थी, मेरा मुंह ना खुलवाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं अब वो 30 साल जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया और ख्वाब देखा था कि जी साडा पुੱਤਰ होएगा ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਿਆ। ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਰਿਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਗਾਂ होंगी, उनको मैं खुदे लाइन लगा के तो सिर्फ ये चीज़ नहीं देख सकता हूँ। ट्रू, मुझे याद है पूरे टाइम कराची कोर्ट पेशी के बाद आपने कहा था आके ले जाऊंगा मैं अपने बच्चे को भी और जी मिसेस को भी ले जी, जाऊंगा। तब मुझे ये मैसेज नहीं आए थे भाई। मैं उस रात गया था, मैं किवान के साथ आधा घंटा रहा, मैंने व्लॉग किया, ठीक है। मैंने इनके मामू को भी कहा, मुझे इनके मामू ने कहा पुत्र तेरी जिम्मेदारी है, जो मर्जी ले जाऊँ। मैं कहा जी मैं जा रहा हूँ सुबह कोर्ट, मैं जैसे आऊँगा मैं ले जाऊँगा, ठीक है। मैं कोर्ट गया हूँ, देख लें आप, उसी पर सारा आपने ब्लॉग पॉडकास्ट कर लिया जान भाई। हम इसको क्लोज, इस मैं चैप्टर को, कराची गया हूँ, इस चैप्टर को हम क्लोज। मैं कराची वापस आया हूँ, नीचे आए हैं ये लोग मिले हैं, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਢਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਗੱਲਾਂ, ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਢੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਬਾਈਟ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ नहीं परवाह हैगी। इन्होंने तब वीडियो बना के भेजी है ग्रुप के अंदर, जब ये 4 बजे रात को निकले, इन्होंने तब वीडियो बना के भेजी ग्रुप के अंदर, मेरे पास इसके भी एविडेंसेस हैं, एडिटर्स को दिया कि देख लो ईमान आई थी, रही नहीं। इनके लिए सिर्फ सोशल मीडिया पे जिंदगी रह गई थी। कहते आप हमें हो ना परवरिश, अपने बहनोई को बलात्कारी कह रहे हो, अपने बहनोई के दोस्तों को बलात्कारी कह रहे हो, ये कहाँ की परवरिश है ब्रो, जो आपकी टिकटॉक लाइव के ऊपर नजर आती है और इनबॉक्स में जाके आप भूल जाते हो कि आप मेरे क्या लगते हो। मेरा एक रिस्पेक्ट है आपके लिए। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ। मैं खैर दूसरी बात जी, कराची के बाद जिस दिन इन्होंने ये वो वीडियोस वगैरह भेजी ना, मैंने टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो देखी, फिर चल रहा है कि रजब भट्ट ने ईमान को घर पे नहीं रखा। मैं कहा यार ये कौन था, रात के 4 बजे तो घर के बाहर कोई फैन नहीं था खड़ा, ये किसने वीडियो बनाई है ईमान अपने घर वापस जा रही है। 3 दिन के बाद वही लड़की जिसने आपको सबूत भेजे, मेरे पास सबूत आए, बाकी सबको गए, वो थी उसी ग्रुप की, लेकिन वो वहां से निकल आई। उसने कहा ये तो कोई गेम ही अलग चल रही है, ये तो पढ़े लिखे सिर्फ इंग्लिश लिखने तक की है बस। जब उसने सारा सामान भेजा, मैं कहा अच्छा ये एडिटर्स को बातें यहाँ से जा रही हैं, फैंस को बातें यहाँ से जा रही हैं, मेरी माँ को सुबह नाश्ते में गालियाँ अलग पड़ रही हैं, दोपहर में गालियाँ अलग पड़ रही हैं, रात को अलग, मेरी 11 माह की भांजी को बदुआ मिल रही है, तो मारी जाए तो अच्छी बात है। आई कांट, ऐसी कोई सवेर मजबूरी। मैं एक आखिरी जुमला और इस चैप्टर को क्लोज करूंगा। रहन दे बस कर ਯਾਰ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੇ ਗਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਆਖਰੀ ਆ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। वजह का कॉल है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेक यू प्रेशियस, जिम्मेदारियां इंसान को कीमती बनाती ਉਹ हैं। ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ आप इतनी जल्दी जिम्मेदारियों से पीछा क्यों छुड़ा रहे हो? ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਤੇਰੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਖਪਿਆ ਪਿਆ ਅੱਗੇ ਹੀ। मैंने जो चीज़ें देख ली हैं, जो मैंने चीज़ें सुन ली है ना, उसके बाद जब मैं एक इंसान को खुशी ना रख पाऊँ, मेरा दिल ही उसके लिए साफ ना हो, और मुनाफकत की तो दोस्ती मैंने कभी नहीं रखी, मुनाफकत का रिश्ता मैं सारी ज़िंदगी आगे 20 25 30 साल जब तक ज़िंदगी कहाँ से निभाऊंगा, जो चीज़ मैं निभा ही नहीं सकता मैं उसके लिए चलूँगा। मैं आपके भी फैंस, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। माजरत करता हूँ जी, जो मैं
कर सकता था, मैंने किया है। बाकी मैं और आप दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला दोनों तरफ दिल मोम कर दे और मुझसे हो जाते हैं। खैर, मैं आपकी इजाज़त से आगे चलूँगा। आपने नाम ले लिया क्योंकि और एक फाइट चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, आपकी और एक और शख्स की, जिसका नाम हमने वैसे ही RTS पे बैन उसका किया आप हुआ नाम है। नहीं लेते ना, क्योंकि वो मेरे ऑन का फेवरेट है। कौन? देखिए ना, वहां पे भी हमने आपने नाम बोलने तो नहीं लेने दिया, दिया लेकिन था। उन्होंने कह दिया मेरा फेवरेट है। नाम हमने वहां भी नहीं लिया था। यारी दोस्ती के पास देखो, रिश्तेदारी के पास चेक करो, और सेंसिटिव रिश्ता इतना हो। एनीवेज कंटिन्यू। क्या हुआ वहां पे, लड़ाई क्यों हो गई आपकी? तो मैं एक चीज कह सकूं जहां आपने बहुत अपना कथारसिस कर लिया है और हमने बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं किया। यू स्पोक योर हार्ट आउट। हम भी बहुत कुछ देख रहे थे। यू वर स्टैंडिंग बाय हिज साइड, हर दफा, वीडियोस बना रहे थे, आ रही थी। एवरी टाइम। मेरे तो ड्राइवर ने भी ये कहा कि उनसे बता दीजिएगा, उनको कह दीजिएगा कि आपकी वजह से हम खामोश रहे। हमने तो कोई एक्शन भी नहीं लिया। भाई आप तो आप बड़े भाई हैं आप, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरी वजह से खामोश रहे, और ये बहुत बचा भी है। जिसकी हम बात करें, हम नाम नहीं लेते। हुआ कुछ ऐसे था कि डकी और मेरा कॉन्फ्लिक्ट गर्मा गर्मी चलती रहती है, बनती भी है। एक हेल्दी फाइट जरूरी है ना। उसने कभी मुझे बिलो द बेल्ट टारगेट किया ना, मैंने कभी उसको बिलो द बेल्ट टारगेट किया। हमारी एक टसल चलती है, ठीक है, डकी भाई की और मेरी। ठीक है यार, एक हीट होती है दोनों की, ऑलमोस्ट सेम स्टेज पे हैं। ओके, वो कहीं बैठा हुआ था इनके साथ ना, बिलाल मारत के साथ। मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मेरा भाई है बिलाल मारत, मेरे दिल में बहुत इज्जत है उसके लिए। फिर ये भाई के साथ, जिसका आप कह रहे हैं नाम नहीं लेना, और डकी बैठे हुए थे। डकी ने 3-4 दिन पहले मुझे रोस्ट किया था HN फूड्स में। मैंने जाके उसको रोस्ट कर दिया। मैंने गाना 4 लाइनों का गाना गाया, नी माओ नानी बंदा गड़े सारे ना बंदे। अब जो मेरा दोस्त है, जिसके लिए मैंने बड़ी बड़ी जगहों पे स्टैंड लिया है, मैंने हर जगह पे कहा है, आपको एक बात का जवाब दें, आज तक पॉडकास्ट क्यों नहीं दिया? कंडीशन उसके साथ ठीक नहीं थे। ऐसे ही है। नहीं, मेरी मालूमात के मुताबिक आपको ये कहा गया था। हाँ, कि वो यहाँ तो कहा भी गया podcast नहीं था, देना। वो कहा भी गया था, लेकिन वो ना भी कहता मैं और भी आप नहीं बहुत करता। ताबेदार थे। मैं ताबेदार हूँ, मैं यारी दोस्ती का, मैं बड़ा ताबेदार, ओबीडिएंट बच्चा बन के आपने मैं हर कहना माना है। मैं यारी दोस्ती का नौकर हूँ भैया। ठीक है, जहाँ पर मुझे कुछ जी करता है, मैं जी हुजूर करता हूँ। नहीं, बहुत से लोगों को जरा ये क्लियर कर दें कि बहुत से लोगों को ये लगता था कि रजब भट्ट के इनके साथ टर्म्स अच्छे नहीं हैं। नहीं, मेरे रेहान भाई से कभी बात नहीं हुई, ना अच्छी ना बुरी, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट जो इनके मुर्शिद हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से मानता हूँ, जानता हूँ, मैं उनको अपना मुर्शिद ही कहता हूँ। ठीक है, दूसरी ये है कि कुछ नहीं था, कभी बात नहीं हुई। मैं इनके साथ पॉडकास्ट करना चाहता, साल पहले भी कर सकता था, 6 माह पहले भी कर सकता था, ऑनलाइन भी कर सकता था, और ये करते मेरे साथ। ऐसे ही भाई जी। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपका मेरे दोस्त के साथ, जो मेरा एक्स दोस्त था, कुछ टर्म्स अच्छे नहीं थे। मेरे दोस्त ने मुझे कह दिया कि एनू नहीं पॉडकास्ट देना। मैं जिंदगी से सबसे बड़ी गलती कर ली तेन पॉडकास्ट दे के। मैं कहा दोस्तों तेरा कम हो गया, कोई गल नहीं देंगे, नहीं दिया। अब मैंने वजन वो 4 लफ्ज़ों का गाना गाया, उन्होंने नहीं बंदा गड़े सारे ना बंदे ने। अब मेरे दोस्त, जो मेरे एक्स दोस्त थे, उन्होंने मुझसे ना कंफर्मेशन ली, ना पूछा। ठीक है, एडिटर से वीडियो बनाई ना, ब्रॉड खोल दी, 20,000 बंदा बिठा लिया, और कह रहे हैं तेरी औकात नहीं है मेरे नाल टसल चलान दी, मेरे नाल लड़न दी, तेनू 20 गड्डियां नू नंबर लवाने पैने ने। था नहीं चलाना था, उसी पॉडकास्ट में खत्म कर देनी थी, कहता ना था कि मैंने ऑफ नहीं करना, फिर उस चीज़ को ड्रैग नहीं करना था। लेकिन आई चूज माई मेंटल पीस और अपना सुकून देखा, बस दैट्स इट। इसके आगे क्या, इसके आगे यही है, एक इरादा एक है, इंशाल्लाह एक इदारा बनाना है, जो मैंने अपने पहले भी एक पॉडकास्ट में कहा था। जो मेरे घर के बाहर रश लगा होता है, वो उस इदारे पे रश लगे, लोगों के जो भी मसले मसाइल हैं, वो आप ज़रा बात करें मुर्शद से, मुझे ज़रा वो NOC ले दें उसकी। अच्छा, आप ही ने कहा कि अब फैन फॉलोइंग में थोड़ी सी कमी आ गई है, या ब्लॉग उस तरीके से नहीं देखा जा रहा जैसे पहले देखा जाता था। भाई अल्हम्दुलिल्लाह फैन फॉलोइंग वैसे ही है। नहीं, let me just frame my question. व्यूअरशिप कम हुई है, तो आहिस्ता आहिस्ता कहीं नोज डाइव कर गई। और इन पर्टिकुलर ये जो आपका रिलेशनशिप है, बहुत से लोग ये चाहते हैं कि बच जाए अगेन, और अगर उन्हें, जैसे आज जो आपने न्यूज़ दे दी है बहुत खतरनाक है, उसके बाद अगर ये फैन फॉलोइंग मजीद नीचे आ गई, डिप आ गया, तो भाई ये then what? मेरी जिंदगी मेरे मेंटल पीस से ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन द थिंग इज कि मैंने किसी को दिखाने के लिए तो रिलेशन नहीं चलाना, या किसी को देख के अच्छा लगेगा तब तो नहीं चलाना। जब मेरे दिल के अंदर ही नहीं वो चीज़, मेरे दिल में चीज़ हॉन्ट ही एक करती है कि आपने मेरी फैमिली छोड़ के अपनी फैमिली प्रेफर की, मेरी माँ के पास उसका बेटा नहीं था, आपका यहाँ रहना बनता था कि जी मैं आपके पास हूँ, आप रही वहां पर जहां पर अपना बेटा था ऑलरेडी। मैं अब क्या पूछ, देखिए इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये हो गया तो मैं I'm good, नो वरीज एट ऑल। जिसमें मैंने तो अपने ब्लॉग में 3-4 दफा कहा, जिसको भाई इंटरटेनमेंट नहीं देखनी, मेरे फैमिली इश्यूज सॉर्ट करने हैं, या उसके अंदर चस्का है, वो छोड़ जाए, वो ना देखा करे ब्लॉग।
मैं अपना एक जॉब करता हूँ, एंटरटेनमेंट देता हूँ आपको, आपने देखनी है आप देख लें, नहीं देखनी छोड़ दें। नहीं आपका ब्रेड एंड बटर यूट्यूब ही है या कुछ और भी है? नहीं पहले भी मेरा सिर्फ यूट्यूब नहीं था मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ा सा ना ज़रा दूरंदेश बंदा हूँ। मैंने आज से कोई 2 साल पहले भी अपने व्लॉग में कहा था कि देख लो वो, मैं आज व्लॉग शुरू कीते जे, मेरे को 13 Pro Max है, उस टाइम पे लेटेस्ट यही था। मेरे पास होंडा सिटी 40 लाख रुपए की गाड़ी है, मैं 8 मरले के घर में रेंट पे रहता हूँ। मैंने इतना किया है, मैंने नौकरियां की हैं, मैं कर रहा हूँ। कल को ये ना कहना कि मैं साइकिल पे आया था मैंने व्लॉग स्टार्ट किए थे, ठीक है। नो डाउट यूट्यूब ने मुझे बहुत 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 नवाजा है, मैं इस चीज़ से नहीं डिनाई कर रहा, लेकिन ये है कि मेरा तब भी बटर ब्रेड नहीं था और अब भी मुझे सुबह यूट्यूब बंद करवा दो, अब तो खैर तो रहा ही नहीं, अभी भी काम शाम और भी हैं। कितने बिजनेसेस आपके? भाई मेरा परफ्यूम का है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी ठीक चलता है। कैसे चल रहा है वो? परफ्यूम अच्छा है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा वो नहीं है ना कि मैं 6 7 8 9 10 आर्टिकल्स लॉन्च कर दूं। आपकी 2 फ्रेग्रेंसेस हैं गालिबन? नहीं भाई, मेरे टोटल 8 9 हो गए हैं, लेकिन वो साल डेढ़ के अंदर मैंने 8 9 लॉन्च किए बस। ठीक है। मेरा होता क्या है, मेरे पे अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं ऐसा नहीं करता ना कि मैंने 8 फ्रेगरेंसेस लॉन्च कर दी हैं, सबके 100 पीस बिक गए, नहीं। मैं एक आर्टिकल लॉन्च करता हूँ, उसका मेरा जितना भी पीस हो ना वो विद इन 2 डेज 3 डेज खत्म हो जाता है, सोल्ड आउट होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा वो ठीक है, यू गेटिंग गुड आउट फ्रॉम इट? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अच्छा कमा रहा है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जिम है, मेरा परफ्यूम है, फिर कह लो कि 2 3 गाड़ियाँ मेरी अली भाई शोरूम वाले जो है उनके पास पड़ी हुई हैं। सिग्मा मोटर्स? हाँ सिग्मा मोटर्स, कंपनी की मशहूरी कर दी हमने। हाँ जी। मेहरबानी है जी, आपने तो करनी है। बस 2 3 4 गाड़ियाँ उनके पास हैं, बस चल रहा है काम, दाल रोटी चल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा शाउट आउट्स भी देते हैं? नीवी पा के संध्या आ कोई गल होई होगी पिछे, अब ब्रांड प्रमोशन, ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਧਰ। शाउट आउट्स के पैसे नहीं लेता। हाँ कोई ब्रांड प्रमोशन आती है, कोई आपको पेड प्रमोशन आती है, लेकिन मैं बहुत चूज ही करता हूँ कि मैं थोड़ा सा महंगा हूँ भाई, तो हर बंदा कितने पैसे लेता है? पता नहीं कितने लेते हूँ, ये छोड़ दें अब। लेकिन मैंने बताया हर जगह पे पता है, मैं व्लॉग की प्रमोशन मेरा हर बंदा नहीं करवाता। वो बहुत शादोनाजो कोई बड़ा कोई अच्छा रेस्टोरेंट हो या कोई बड़ा कोई अच्छा कोई ब्रांड हो, वो अफोर्ड कर लेता है, हर बंदा नहीं कर पाता। नहीं मैंने सुना टिकटॉक से आपने 9 करोड़ कमाया 1 महीने में? हाँ जी, 1 महीने में नहीं भाई, 3 महीने 3 महीने में 9 करोड़? मैंने 3 महीने टिकटॉक लाइव की थी रेगुलर, बताया ना आपको। और उस टिकटॉक लाइव में भी बहुत मेरी लाइफ में ना मैस क्रिएट किया, कोई ऐसी बात भी कर देनी हाजिर दिमागी से, कुछ खुद लगा देनी, तो वो भी सुबह मैगजीन में आ जाना। मैंने यूट्यूब नहीं किया 2 3 महीने, मतलब मैं रेगुलर नहीं था ब्लॉग में ना, मेरी फैमिली कर रही थी, मेरे दोस्त कर रहे थे, जितना कर सकते ਵੀ थे। ਬਹੁਤ पैसा उस तरह की व्यूअरशिप नहीं थी, बहुत कम हो गई थी व्यूअरशिप, 1 1.5 मिलियन भी आ गई थी। तो अभी मैं दोबारा आया हूँ, तो मैंने 2.5 मिलियन पे इसको दोबारा किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने उस टाइम पे टिकटॉक लाइव रेगुलर की थी, तो मैंने अब टिकटॉक लाइव करने का इरादा है? नहीं मैं नहीं करता भाई, ना टाइम मिलता है, मेरे यार दोस्त करते हैं, मैं बुरा नहीं कहता उसको, लेकिन मैं नहीं करता, मेरे को टाइम नहीं मिलता। मैं यूट्यूब पे मुझे अच्छा लगता है फ्यूचर में टैप इन करना है, कंटिन्यू करना है या भाई, बस वो शुगर quit में कर के लिए दिया? मैं कभी कभी आ जाता हूँ, महीने में 2 बार आ गया, महीने में 1 बार आ गया। अब जब से मैं आया हूँ यूके से, मैं 3 दफ़ा लाइव आया हूँ, मुझे 4था महीना, 3 दफ़ा लाइव आया हूँ बस। यूट्यूब और टिकटॉक? टिकटॉक से मेरा वे ऑफ अर्निंग नहीं है, वो तो वहाँ पर एक मजबूरी थी, 3 महीने मैंने किया है बस। जो मेरा वे ऑफ अर्निंग है वो ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ यूके सी ਆ ਜਦੋਂ ਯੂਕੇ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ। यूट्यूब कह लें, सिग्मा कह लें, परफ्यूमरी कह लें, छोटी मोटी जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है वो कह लें, जिम कह लें। अच्छा यू स्टार्टेड ऑफ एज एन एंटरटेनर, आई मीन अपने व्लॉग में भी और ये सब करते 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 फिर उसमें फैमिली आ गई, माँ जी आ गई, वालिद साहब आ गए, अब सिस्टर आ गई, ये घर की खवातीन आ गई, इवन पहलिया भी आई कुछ अर्ली डेज के अंदर, टाइम के लिए। हाँ कुछ टाइम के लिए। तो फिर ये फैमिली व्लॉग बन गया हाँ मैं और फिर आपके साथ जो है वो एक स्टैम्प लग गई है फैमिली व्लॉगर कि आप फैमिली व्लॉगर हैं। और बहुत बात से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए बहुत से लोगों ने तो बहुत हार्ड टर्मिनोलॉजीज भी इस्तेमाल की आपके लिए और डिफरेंट पॉडकास्ट के अंदर ये बात हुई, व्लॉग्स के अंदर ऐसी बातें हुई। आप फैमिली व्लॉगर हैं और फैमिली व्लॉगिंग हमारे यहाँ अच्छी नहीं समझी जाती। अपनी माओ बहनों को दिखाना, बेडरूम्स दिखाना, अपनी लाइफ मतलब आई मीन घर के अंदर बेडरूम, क्या हो ड्राइंग रहा है, रूम, क्या नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं, मतलब फैमिली पूरी दिखा। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਲੌਗ ਜਾਂ ਵਲੌਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਲੌਗਿੰਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵਲੌਗਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਰਟ ਮਿਨੀ ਵਲੌਗਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀ ਵਲੌਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ। नगमा दुपट्टा लिया हुआ है नहीं लिया हुआ क्या है ये सब, तो ये बहुत बड़ा इल्जाम है आपके ऊपर कि आप तो घर में माएँ बहनें, मैं ये नहीं कह नहीं, रहा, बिल्कुल लोग ठीक कहने वाले ये कहते हैं कि ये दिखा के पैसे कमाते हैं आप। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने व्लॉग जरा कुछ ना कुछ तो देखे ही होंगे होमवर्क के लिए। कितने मिनट का ऑलमोस्ट व्लॉग होता है मेरा? आपका व्लॉग मैंने देखा है कि सबसे लंबा होता है।
सबसे लंबा यानी ऑन एवरेज 35-40 मिनट्स का तो होता है। 40 मिनट्स का होता है, कभी कोई 50 पे भी जाता है, और डेली का होता है, ठीक है। अगर और मुझे आपने- पता चला है उसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी 12-13 मिनट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे ज़्यादा ही होता है, समटाइम 15 पे भी जाता है। अब आपने अगर 2-4-5 व्लॉग्स देखे होंगे जस्ट फॉर द होमवर्क, मैं नहीं कहता आप देखते होंगे, रेगुलर आप कामकाज वाले बंदे, नहीं टाइम मिलता होगा, कितने मिनट्स के लिए फैमिली आती है? ऐसे जनरल क्वेश्चन कर रहा हूँ। अच्छा, इन दिनों जो मैंने व्लॉग देखे हैं आपके, उसमें फैमिली मुझे बहुत कम नजर आई है इन दिनों। आपने अभी होमवर्क इन दिनों पे किया ना, आप 1 साल वाले पहले व्लॉग। अच्छा, उससे पहले क्योंकि मैंने कुछ क्लिपिंग्स देखी हैं, हाँ। कुछ शॉर्ट्स वो देखे TikTok हैं, पे? हाँ, रील्स देखी हैं टिकटॉक के ऊपर, आई मीन इंस्टा के ऊपर कहीं या पे- फेसबुक के ऊपर, किसी भी जगह पे। जी, मैं बताता हूँ आपको, मेरा 35-40 मिनट का अगर व्लॉग है ना, तो मैं ये ओपन चैलेंज करता हूँ, ठीक है, आप फ्रीक्वेंटली मेरा व्लॉग देखें, ठीक है। मेरा डे 1 से अपने दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला था, ट्रैवल था, इंटरटेनमेंट थी, प्रैंक्स थे, शुगल थे, जुगतें थी, ठीक है, और वो आज तक सेम है, ठीक है। अब मैं घर से अगर निकला हूँ, मैंने क्या दिया, अस्सलाम वालेकुम माँ जी, अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, तो ये फैमिली व्लॉगिंग होगी। अब अगर मेरी शादी है, मेरी शादी पर मेरी फैमिली नहीं होगी तो कौन होगा, ठीक है। मेरे 35-40 मिनट व्लॉग के अंदर 5 मिनट मैं अपनी फैमिली को हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम करता हूँ, और उस 5 मिनट के ऊपर मेरे 30 मिनट जो बकाया है ना, उस पर कांटा मार दिया जाता है, और मुझे फैमिली व्लॉगिंग घर की खवातीन को एज अ कमोडिटी बेचना दुरुस्त है? कमोडिटी बेचने वाली क्या बात है भैया, ड्रामा क्यों देखते हैं? Right, films you're क्यों देखते हैं? getting views मैं out आपको from it. बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुनो। मेरे घर पे एडिटर है मेरा सलमान, मैंने कोई बाहर का बच्चा नहीं रखा हुआ, मेरी खाला का बेटा है, ठीक है। मेरी अम्मा का कहीं दुपट्टा नहीं ना होता अगर, तो वो ट्रिम कर देता है, घर के अंदर है ना खातून है, ठीक है। मैंने कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं दी है यार उसमें कोई बेचने वाली बात आ जाए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप लोगों का बात कर रहे हैं, लोगों का सवाल मुझसे ले रहे हैं, लेकिन जो आपके ड्रामा में, जो आपकी फिल्म में चल रहा है, फिर 35 मिनट के व्लॉग में आप लोग क्या चाहते हैं कि जी मैं 5 मिनट अपनी माँ को सलाम भी ना करूँ व्लॉग में? आपने कम कर दिया, आप स्ट्रेटेजिकली कम कर दिया। मैंने कम किसी के कहने पे नहीं किया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक गलाजत लोग निकालते हैं ना जुबान से, फिर वो फैमिली को वो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती। हमें तो पता है कि कुत्ते हैं, इन्होंने भौंकना, बात खत्म हो जानी है। लेकिन द थिंग इज कि मैं, मेरा पहले भी कम ही था, मैंने दोस्तों से नाश्ता करने सुबह जाना है, तो शाम को मैंने घर आना है, और मेरा व्लॉग ऑलमोस्ट एंड होता है। आपको लगता नहीं कि फैमिली व्लॉगिंग करने की वजह से आपकी फैमिली में इतने इश्यूज आ गए? नहीं भाई, इसमें ऐसा कोई इस चीज़ का कोई लेन देन नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो मेरे जो ऑन भाई हैं, ये तो PMS की तैयारी कर रहे थे, इनको तो सोशल मीडिया पे इंटरेस्ट ही नहीं था, तो ये क्या करने आ गए हैं लाइव पे रेगुलर? मैं अक्सर कहता हूँ कौन आशिक खुदा की जात का है, सारा चक्कर मुआशियात का है। ड्रामेबाजियाँ हैं, बता के बात है, ये बहुत 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 ज़्यादा जो थे ना। ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਇਹਨੇ ਫਰੈਂਡਸ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਡਨ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਓਵਰ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਡਨ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿੰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ job ਕੰਮ ਆ, ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਜਬ ਬੱਟ ਬੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਫੀਲ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਲੱਗੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਰੀਡ ਕੀਤੇ। ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਨਸ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਿਲ ਜਾਣ, ਹਨਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਐਫਰਟ ਹੋਏ ਫੇਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਵਸਿਆ ਰਹੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਲਈ ਨਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।